Hello, good morning student. Today we are going to learn here our new point of this lesson, that is a reactivity series of the metal. Actually, it is very important part is related to the metallurgy. When we have learned the reactivity series of the metal, at that time we have learned here the one remaining type of the chemical reaction. Those we have learned in our yesterday period. So we have continue its our remaining six type of the chemical reaction. Actually, in our previous class we have learned the five types of the chemical reactions of the metal. I have again reminded. Yes, we have learned the first chemical type of reaction, that is a metal react with oxygen. Another is a metal react with water. Yes, okay. Third one is the metal react with acid. Again, we have learned here one special acid reaction, that is a metal react with nitric acid. That is a fourth. Again, we have learned the fifth type of chemical reaction, that is a metal react with another metal salt. Yes, okay. And remaining one. Yes, okay. Those we have learned today's period. Okay. Again, we have learned our special today's unit, that is a reactivity series of the metal. So we have continued it. Today what we have learned here, actually we have learned here some important about the reactivity series of the metal, again related to its type of a chemical reaction, that is a metal react with a non-metal. So actually we have learned here the including points, that is today's unit including point, that is a reactivity metal is not same, reactivity of metal is not same. देखिए बेटा, इसको हम यहाँ पे लर्न करेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हाउ डिटरमाइन द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जैसे कि ये रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल होती है। जैसे देखिए बेटा, हमने अलग अलग मेटल को लेकर है ना एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी, जैसे कि यस्टरडे वी हैव कैरीड इट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने अलग अलग मेटल लिए थे, जैसे कि एल्यूमिनियम लिया था, कॉपर लिया था, है ना बेटा, फेरस लिया था, लीड लिया था, इसके बाद मैग्नीशियम लिया था, जिंक लिया था, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे अलग अलग मेटल्स को लेकर हमने यहाँ पे अलग अलग रिएजेंट के साथ उसकी रिएक्शन करते हुए है ना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी लर्न किए वाले हैं। तो एक्चुअली वहाँ पे हमें उसकी जो रिलेटिव जो रिएक्टिविटी होती है ये हमें यहाँ पे पता चलती है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, लर्न करने जाएंगे थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज को देखना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल को लर्न करने के लिए हम यहाँ पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, इसको भी हम यहाँ पे फोकस करेंगे। अगेन वी हैव लर्न हियर द रिएक्टिविटी रेट ऑफ एलिमेंट्स, है ना। इसी के साथ ये रिएक्टिविटी ऑफ रेट ऑफ एलिमेंट्स ये भी हमें यहाँ पे पता चलता है, क्योंकि देखिए बेटा कल हमने जो फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस लर्न की थी, जैसे कि मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल साल्ट, एक्चुअली वहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ऐसा हमें यहाँ पे ज्ञात हुआ। अभी उसी को लेकर यहाँ पे हमें मेटल की रिएक्टिविटी वहाँ पे मिलती थी, क्योंकि रिएक्टिविटी को लेकर ज़्यादा रिएक्टिविटी रेट वाला जो मेटल के साल्ट थे उन्हीं से में क्या हो रहा बेटा, वो रिप्लेस होते हुए कम रिएक्टिविटी रेट वाले एलिमेंट्स को क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर देता है। ये भी वहाँ पे लर्न किया था। तो इसी को लेकर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी रेट ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। Here we have learned the reactivity series of the metal. Actually, in our previous class, we have learned the different
experimental activity. In that experimental activity, we have learned the different metal. We have take the different metal there, like the aluminum, copper, ferrous, lead, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, अभी ऐसे हमने अलग अलग मेटल्स वहाँ पे लिए वाले थे. एक्चुअली वी हैव यूज द केमिकल रिएजेंट आल्सो like the oxygen, water, acid, other metal salt we have used there. It's okay. Actually here we have learned today that is a metal with non-metal. चलिए बेटा, तो अलग अलग से रिएजेंट को लेकर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे लर्न करते हैं, जैसे उसके केमिकल रिएक्शन को हमने फॉलो भी किया है, उसको लर्न भी किया है. तो देखिए बेटा, उसी को लेकर हम यहाँ पे अभी क्या करने जा रहे हैं बेटा, जैसे कि एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इसके बारे में हम अभी डिटेल्स यहाँ पे लेंगे. तो कुछ अभी थ्योरेटिकल पॉइंट यहाँ पे हमें ज्ञात करने हैं. तो देखिए, ये थ्योरेटिकल पॉइंट जब हम लर्न करेंगे तो पहले वाले जो चैप्टर में, जो क्लास में है ना, चैप्टर नहीं, पहले वाले क्लास में जो हुआ था उसी को हमें क्या करना है बेटा, जैसे याद करते हुए आगे चलना है. तो देखिए बेटा, इस वी हैव लर्न हियर इन आवर प्रीवियस क्लास दैट इज अ रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल इज नॉट अ सेम देयर, है ना बेटा. वही पे हमने ये लर्न किया था कि अलग अलग मेटल को लेकर, अलग अलग रिएजेंट्स को लेकर हमने जैसे कि एक रिएक्शन को हमने फॉलो किया था, रिएक्शन को जो लर्न किया था, तो हमें वहाँ पे एक बात पता चली कि ये जो मेटल्स होते हैं वो डज नॉट शो द इक्वल रिएक्शन नहीं बताते हैं, है ना. तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या पता चला, वहाँ पे मेटल इज द रिएक्टिविटी रेट इज अ नॉट सेम, उसकी रिएक्टिविटी रेट वहाँ पे सेम नहीं होती है ना, इक्वल नहीं होती है. ये बात जैसे पहले वाले पीरियड में हमें ज्ञात हुई है ना. चलिए बेटा, दूसरी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें पता करनी है, जैसे कि रिएजेंट को लेके. चलिए बेटा, जैसे यहाँ पे हमने एक रिएजेंट्स लिए वाले थे, है ना, जैसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल, ये जो छोटा सा यूनिट वहाँ पे हमने लर्न किया था. तो देखिए, हमने वहाँ पे अलग अलग रिएजेंट को लेके जैसे जो रिएक्शन के टाइप्स ऑफ मेटल के वहाँ पे हमने लर्न किए वाले थे, जैसे कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, है ना, स्पेशली मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, मेटल रिएक्ट विथ अदर मेटल साल्ट, और आज हम जो लर्न करने जा रहे हैं मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, है ना बेटा. तो इसी को लेकर हमें जैसे कि ये रिएजेंट पता चलते हैं, रिएजेंट है ना, मेटल के साथ, जैसे मेटल को जैसे कि हमें उसकी रिएक्टिविटी के बारे में हमें यहाँ पे जैसे लर्न करना था, तो हमने अलग अलग ऐसे रिएजेंट लिए वाले थे. जैसे कि देखिए बेटा, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना, ये वाटर है, ठीक है बेटा, और ये एसिड है. देखिए बेटा, पहले हमने ये क्या किया था, लर्न किया था. प्रैक्टिकली वी हैव लर्न देयर, एक्चुअली वी हैव लर्न हियर theoretical points we have learned here. We are going to learn here the theoretical account information. तो देखिए, इससे हमें क्या बात पता चलती है बेटा, तो जो मेटल्स होते हैं, इस ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ देम बोले तो दैट इज अ रिएजेंट, है ना. जो इस सभी मेटल्स होते हैं तो रिएजेंट में रिएक्ट होते हैं क्या, नहीं, है ना, क्योंकि कुछ ही मेटल्स यहाँ पे हमें हवा में जैसे कि रिएक्शन बताते थे, है ना बेटा. कुछ ही मेटल्स हमें ठंडे पानी में रिएक्शन बताते थे, है ना बेटा. कुछ ही मेटल्स होते थे जो ठंडे पानी में रिएक्शन को क्या कर रहे थे बेटा, प्रोसीड कर रहे थे, है ना. और कुछ मेटल्स जैसे कि देखिए बेटा, यस, जैसे रिएक्शन बताते थे वो इसके ऊपर, जैसे कि हवा का या कोई पानी का या कोई जैसे एसिड का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं बनता था. ये भी हमने वहाँ पे लर्न किया है. तो वहाँ पे ये भी बात हमें पता चली कि
ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ रिएजेंट्स, है ना। तो ये जो हमने लर्न किया है, तो इससे हमें यहाँ पे ये बात ज्ञात होती है कि जो रिएजेंट्स होते हैं, तो रिएजेंट ये इसको लेकर हम मेटल की जो रिलेटिव रिएक्टिविटी रेट होती है इसको डिटरमाइन नहीं कर पाते। देखिए बेटा, मेटल की रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी रेट, इसको डिटरमाइन करने के लिए एक काफी नहीं है ना, कौन, रिएजेंट, है ना बेटा। तो देखिए, तो मेटल के जो रिलेटिव रिएक्टिविटी रेट को हमें यहाँ पे ज्ञात करना हो, इसके बारे में हमें अधिक इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो वहाँ पे देखिए बेटा, हमें यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लर्न करने के लिए मिली थी। तो बताइए वो वाली रिएक्शन कौन सी थी बेटा, कौन बता सकता है। देखिए बेटा, यस, वो वाली रिएक्शन थी, दैट इज हाँ, कौन सा टाइप था मेटल का रिएक्शन का टाइप, दैट इज अ मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल साल्ट। अभी ये जो टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ मेटल हमने वहां पे लर्न किया था, तो वहां पे देखिए हमें एक केमिकल रिएक्शन मिली थी। Yes, which type of chemical reactions we have obtained there? That is a displacement reaction. Displacement reaction. अभी वो जो displacement reaction होती है वही हमें यहाँ पे मदद करती है, किसको, जैसे कि relative reactivity rate of metal, इसको हमें डिटरमाइन करने के लिए ये वाली रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन यहाँ पे हमें दिखाई देती है। ठीक है बेटा, इसी को लेकर यहाँ पे आज का ये जो पॉइंट है, दैट इज अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिलती है। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला है बेटा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ अदर मेटल सर्व दिस पर्पस। ठीक है, तो मेटल को डिटरमाइन करने में, मेटल की रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करती है बेटा, इस मदद करती है। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए बेटा, हमने ये रिएक्शन पहले ही पीरियड में इसको लर्न किया है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी भी हमने वहाँ पे लर्न की थी, है ना, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट भी वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की वाली थी। ठीक है, थोड़ा सा उसे याद करना है। ठीक है, रिमाइंड करते हुए इस पॉइंट को हमें लर्न करना है, जस्ट इट्स बिकमिंग इजी देयर। चलिए बेटा, तो यहाँ पे देखिए, तो हमने एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी यहाँ पे कैरी ऑन की थी, उसी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, एक सहज रूप से यहाँ पे रेखांकित करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आई हैव शोन दिस एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी। Yes, we have choose there 2 टेस्ट ट्यूब। वहां पे हमने कितने टेस्ट ट्यूब लिए थे, 2 टेस्ट ट्यूब लिए वाले थे। ठीक है, याद कीजिए, स्टैंड के ऊपर ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब को हमने अरेंज किया था। जैसे वाले पहले टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे क्या लिया था बेटा, यहाँ पे हमने एक मेटल का साल्ट लिया था, मेटल का साल्ट। चलिए, इसमें जो मेटल का साल्ट हमने यूज किया है, ये वाला कौन है बेटा, दैट इज अ कॉपर सल्फेट। कौन लिया था हमने, यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया है। ठीक है, अभी देखिए कॉपर सल्फेट है, एक कॉपर सल्फेट है। चलिए, तो ये कॉपर सल्फेट कौन है बेटा, तीसरा वन है वो मेटल साल्ट, पहले टेस्ट ट्यूब में लिया वाला था। ठीक है, अभी दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे भी मेटल साल्ट, चलिए मेटल साल्ट, जैसे कि सल्फेट साल्ट है, क्लोराइड साल्ट है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, साल्ट्स होते हैं। तो ऐसे हमें मेटल के साल्ट लेने हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए बेटा फेरस सल्फेट लिया था, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था, फेरस सल्फेट। देखिए, याद कीजिए, मैंने वहाँ पे डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए पूरा डिक्टेट किया था वहाँ पे। चलिए, ये FeSO4 है, ये FeSO4 कौन है फिर यहाँ पे, दैट इज हम बताए बेटा मेटल साल्ट है, ये वाला कौन यहाँ पे, मेटल साल्ट। चलिए, अभी ये 2 टेस्ट ट्यूब में हमने अलग अलग ऐसे मेटल के साल्ट लिए। पहले टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लिया है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे फेरस सल्फेट लिया है, और पहले टेस्ट ट्यूब में देखिए बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, एक मेटल यूज करेंगे। ठीक है,
अभी वो मेटल हमने जैसे कि थ्रेड को लेकर, है ना, मेटल को क्या किया था, टाइड किया था, है ना। कौन सा मेटल हमने लिया था, दैट इज आयरन नील। ये कौन है बेटा यहाँ पे, आयरन नील, दैट इज फेरस। आयरन नील बोले तो कौन यहाँ पे, हमने इसको जैसे कि अभी फेरस है अपना ये मेटल, ठीक है। अभी दूसरे में हमने मेटल लिया था जैसे कि कॉपर की एक तार ली वाली थी, दैट इज कॉपर की स्ट्रिंग, ठीक है, वी हैव यूज इट। अभी देखिए इसको हमने उस मेटल साल्ट में, दो मेटल को अलग अलग हमने यहाँ पे सस्पेंड किया था। देखिए ये रिएक्शन हमने वहां पे पहले ही लर्न की वाली है, पहले पीरियड में हमने इसको देखा है, स्टडी वो लर्न इट, ऑलरेडी वो लर्न इट, ठीक है। तो देखिए अभी ये रिएक्शन हमने फॉलो करने के लिए इसके ऊपर एक्चुअली हम एक कुछ देर के लिए हम रख देते हैं, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे रबर कॉर्क को लेकर यहाँ पे क्या किया था, उसका ओपनिंग टोटली फिक्स किया था। देखिए यहाँ पे रबर कॉर्क लगवाया था एंड वी हैव क्लोज द ओपनिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एंड वी हैव डू हियर ऑब्जर्वेशन। अभी हम यहाँ पे इस जो प्रोसीजर को, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए बेटा अभी अपने थ्योरी में आई, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, इफ ए मेटल, देखिए मेटल, मेटल यहाँ पे कौन है, जैसे कि फेरस है, फेरस है ना बेटा। अभी यहाँ पे इस मेटल को हम क्या करते हैं बेटा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा जैसे कि अभी ए, वी हैव कंसिडराइज इट, कंसिडराइज इट, अभी यहाँ पे कंसिडराइज करेंगे, है ना। जैसे कि है, देखिए बेटा इफ मेटल, यस दैट इज Fe, एक मेटल है, डिस्प्लेस्ड अनदर मेटल बी, अब यहाँ पे डिस्प्लेस्ड अनदर मेटल बी, अब यहाँ पे देखिए मेटल का साल्ट है, इसमें जो मेटल है इसको हम क्या नाम देते हैं, अब वी हैव कंसिडराइज हियर द बी, हम इसको बी कंसिडराइज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, तो देखिए ये जो बी है, तो ये बी क्या है बेटा, दैट इज अ सोल्यूशन, सोल्यूशन साल्ट है, सोल्यूशन साल्ट, और ये केवल यहाँ पे मेटल मिलता है, ठीक है। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, एक रिप्लेस होता है, उसकी जगह एक दूसरा क्या बेटा, उसकी जगह धारण कर लेता है ना, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, यस, जैसे कि मेटल डिस्प्लेस्ड अनदर मेटल बी फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट, then it means that the metal is a more reactive than the metal B। तो देखिए बेटा ए बी की जगह लेता है, तो इसका मतलब हमें ऐसे मिलता है कि यहाँ पे ए कैसा है बेटा, ए इज अ मोर रिएक्टिव देन द मेटल बी। तो देखिए बेटा ऐसे यहाँ पे मिलता है। एक्चुअली देखिए इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हम जनरली हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे लर्न करेंगे, जनरल। देखिए बेटा तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, जैसे कि मेटल ए, ये देखिए मेटल ए, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हमने यूज क्या किया, यहाँ पे एक रिएजेंट है, मेटल साल्ट एक यहाँ पे रिएजेंट है ना, अभी इसको हम रिएजेंट बोल सकते हैं, है ना, जैसे कि कॉपर सल्फेट, जैसे यहाँ पे कौन है बेटा, साल्ट ऑफ मेटल बी, है ना। तो यहाँ पे जैसे रिएक्ट होगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है बेटा, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, है ना, ए मेटल के साल्ट सॉल्यूशन मिलते हैं, जैसे कि बी रिप्लेस होता है, देखिए बी रिप्लेस होता है, सेपरेट हो रहा है, बी अलग सा हो रहा है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है। तो देखिए बेटा इसको हम रिएक्शन के रूप में यहाँ पे यहाँ पे लर्न करने जाएंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ये देखिए कॉपर सल्फेट प्लस फेरस, ठीक है। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलने वाला है हमें, फेरस सल्फेट मिलता है, कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेट होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी रेट यहाँ पे क्या होती है, कम दिखाई देती है, समझ में आ रहा है। तो देखिए बेटा ये यहाँ पे हमें ज्ञात होता है। एक्चुअली देखिए बेटा इस जो पार्ट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, वी क्लीन इट फॉर आवर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, हमें यहाँ पे एक जगह चाहिए। चलिए बेटा तो एक्चुअली
हम यहाँ पे ये थ्योरी ज्ञात होती है। एक्चुअली देखिए बेटा, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो आयरन है ना, फेरस, तो फेरस क्या करता है बेटा, आयरन हैज डिस्प्लेस्ड, ये डिस्प्लेस कर रहा है, किसे डिस्प्लेस कर रहा है बेटा, कॉपर को, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। और कॉपर एक्चुअली कहाँ पे बेटा, कॉपर सल्फेट के रूप में, जैसे कि मेटल साल्ट के रूप में है, मेटल के साल्ट के रूप में है। तो कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पूरी तरह से यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है ना, वहां पे वो जगह छोड़ देता है। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि आयरन इज ए मोर रिएक्टिव देन दी मेटेलिक कॉपर। मेटेलिक कॉपर, देखिए मेटेलिक कॉपर, इससे भी आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है। तो देखिए इसी को लेकर जो साइंटिस्ट थे, उस समय जो साइंटिस्ट इस मेटल को लेकर जो स्टडी कर रहे थे, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो इसी को लेकर, इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेकर उन्होंने क्या कर दिया बेटा, मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए रिप्रेजेंट कर दी है, उसको यहाँ पे हमें दे दिया स्टैंडर्ड रूप के तरह, यहाँ पे हमें लर्न करने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट ने हमें यहाँ पे केवल इसी आधार पर दिया है, किसी आधार पर, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आधार पर मेटल की रिएक्टिविटी रेट सीरीज यहाँ पे डिटरमाइन की वाली है। ठीक है बेटा, तो देखिए, तो यहाँ पे हमें ये थ्योरेटिकल पॉइंट लर्न करने के मिलता है कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इज in the increasing or decreasing order of the reactivity is called as the reactivity series of a metal। देखिए बेटा, ये वाला पॉइंट हमें एग्जाम में आ सकता है। यस, व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो देखिए बेटा, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ए डिक्रीजिंग और increasing order of reactivity is called as a reactivity series of metal here। तो देखिए, तो ये reactivity series of metal, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे देखिए बेटा, एक जैसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम लर्न करने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए बेटा, यहाँ पे मेटल को अरेंज किया है, कैसे अरेंज किया है बेटा, देखिए यहाँ पे अभी ये जो हमें दिखाई देता है दैट इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये ऑर्डर कैसे यहाँ पे डिक्रीजिंग, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं बेटा, असेंडिंग। ये असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, डिक्रीजिंग है। और जैसे हम ऊपर जैसे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये डिसेंडिंग, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा है। ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, हमें इंक्रीजिंग मिल रहा है। देखिए ऊपर वाला इंक्रीजिंग। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर की जो लाइन रेखा दिखाई देती है ना, उसके ऊपर हमें दोनों एंड में अपोजिट एरो मिल रहे हैं। जैसे ऊपर की तरफ दैट इज वन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे नीचे की तरफ हम जब लर्न करते हैं तो वहाँ पे एक डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देता है। तो देखिए, तो रिएक्टिविटी रेट अभी पोटेशियम, तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी रेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सोडियम की, इसके बाद लिथियम की, कैल्शियम की। तो ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, ये देखिए, तो ये हाई रिएक्टिविटी रेट एलिमेंट है। एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, यस, नेम द हाई रिएक्टिविटी रेट एलिमेंट, दैट इज अ पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम। अभी देखिए बेटा, मॉडरेट रिएक्टिविटी रेट, अब ये मॉडरेट रिएक्टिविटी रेट कौन है यहाँ पे, जैसे कि देखिए, हम यहाँ पे मैग्नीशियम, इस एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन एंड लीड, ये जो एलिमेंट्स है दैट इज अ मॉडरेट रिएक्टिविटी रेट। ये मॉडरेट रिएक्टिविटी रेट सीरीज बताते हैं। देखिए बेटा, जैसे कि हम यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी देखिए हम जैसे और नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर एंड लास्ट गोल्ड। ये जो एलिमेंट्स है इनकी जो रिएक्टिविटी रेट है सबसे कम है, दैट इज अ लो रिएक्टिविटी रेट। तो इसी को लेकर यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को लेकर यहाँ पे हम
तीन तरह से एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं। जैसे कि देखिए बेटा, हाई रिएक्टिविटी रेट एलिमेंट्स, मॉडरेट रिएक्टिविटी रेट एलिमेंट्स एंड लो रिएक्टिविटी रेट एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे पता चलती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हमें डेफिनेशन मिली है, वो वाली कौन सी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो ये क्या होता है बेटा, द अरेंजमेंट, देखिए अरेंजमेंट है ऑफ मेटल, यस, इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर of the reactivity is called as a reactivity series of the metal। एक्चुअली ये जो reactivity series हमें पता चलती है केवल किस आधार पर, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आधार पर। ठीक है बेटा, यही साइंटिस्ट ने हमें यहाँ पे स्पष्ट करके यहाँ पे हमें लर्न करने के लिए इसका मेटल का जो रिएक्टिविटी रेट सीरीज यहाँ पे दी वाली है, तो इसी तरह से यहाँ पे हमें उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो और इस स्लाइड में हमें ये भी बात पता चली है कि रिएजेंट को लेकर हम जब स्टडी करते हैं तो ये रिएजेंट इतने काफी नहीं होते हैं कि वो क्या कर सके, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को डिटरमाइन कर सके, है ना। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इसको डिटरमाइन करने के लिए केवल हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही क्या करती है बेटा, मदद करती है। ये बात हमें यहाँ पे पता चलती है। ठीक है, तो देखिए वी विल गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। Here we will continue our next remaining type of chemical reaction of metal, that is a reaction of metal with non-metal। ठीक है बेटा, इसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे। यस ओके, दिस इज द सिक्स्थ type of a chemical reaction of metal। Actually we have learned here some theoretical account, so we have started, we have known about the noble gases। yes, do you name the noble gases? चलिए बेटा, नोबल गैसेस के नेम बता सकते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। जस्ट ओके, these are one our yes noble gases, we have learned it in our previous class। Actually these noble gases, they do not participate any chemical reaction। ठीक है, why? Because they are already fulfilled state, because they obtain their dual and octo stability। ठीक है ना, इसी कारण वो क्या करते हैं बेटा, कोई भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं होते, क्योंकि वो ऑलरेडी कैसे फुलफिल है। ठीक है, तो इसी को लेकर ये जो हमें बात यहाँ पे ऑलरेडी मालूम है नोबल गैस को लेकर। तो देखिए बेटा, हमने अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर, जैसे कि मेटल एलिमेंट्स को लेकर स्पेशली वी विल लर्न हियर द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए in our previous class we have learned the first type of chemical reaction of a metal, that is a metal react with oxygen। metal react with क्या बेटा, oxygen, that is oxidation reaction। वो वाली रिएक्शन हमें कौन सी मिल रही थी, that is oxidation reaction। ठीक है बेटा, अभी हमें यहाँ पे स्पेशली क्या दिखाई देता था बेटा, जैसे कि देखिए बेटा, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। तो यहाँ पे कैटायन मिलते थे, क्यों, क्योंकि मेटल हैव एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, दे पॉजेस अ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस फॉर्म्स। जस्ट ओके, वी हैव लर्न्ड देयर। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो ये जो हमने मेटल को लेकर लर्न किया था, जैसे कि नॉन मेटल को लेकर हमें ये भी पता चलता है कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, तो नॉन मेटल क्या करते हैं बेटा, जैसे कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, दे पॉजेस वन चार्ज, दैट्स अ नेगेटिव चार्ज, एंड बेटा दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव
elements or the electronegative ions forms there, ठीक है, नॉन मेटल को लेकर, ठीक है नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट, तो हमें एक बात यहाँ पे पता चलती है कि ये जो एलिमेंट्स ऑफ एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, दे ऑलवेज ट्राई टू ऑब्टेन द फुलफिल स्टेट, जैसे कि ड्यूअल स्टेट हो या ऑक्टेव स्टेट हो, उसे फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है तो वो ड्यूअल स्टेट पूरी करके हीलियम में कन्वर्ट होता है ना बेटा, जैसे कि हाइड्रोजन के नजदीक है हीलियम, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करता है बेटा, वो जैसे गेन करता है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहाँ पे हीलियम में कन्वर्ट होता है। समझ में आ रहा है ना बेटा। तो हर एक यहाँ पे एलिमेंट्स के एटम अक्सर क्या करते हैं बेटा, प्रयास करते हैं कि अपनी अपनी पूर्ण स्थिति या कंप्लीट स्टेट ऑक्यूपाई करें, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये जो ऑक्यूपाई करने की, जो कंप्लीट स्टेट ऑक्यूपाई करने की जो स्टेज होती है हर एक एलिमेंट्स के एटम की, तो इसमें एक तरह का वो फोर्स को यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए या गेन करने के लिए वहां भी उन्हें फोर्स लगता है, दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स। उसे क्या बोला जाता है बेटा, ये ड्राइविंग फोर्स। देखिए मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ड्राइविंग फोर्स इज द गेनिंग एंड लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, गेनिंग एंड लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। गेन बोले तो हमें झट से याद आना है मेटल। मेटल क्या करते हैं, गेन करते हैं नहीं, नॉन मेटल गेन करते हैं, एंड मेटल क्या करते हैं, डोनेट। देखिए मेटल डोनेट करते हैं, गेन कौन करता है, नॉन मेटल, ध्यान दीजिए, है ना। तो देखिए लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, तो इसमें जो हमें यहाँ पे प्रोसेस होती है, जो फोर्स कैरी ऑन होता है, इसी को ही ड्राइविंग फोर्स कहा जाता है। चलिए बेटा अगेन नेक्स्ट, अभी ये जो पूरी तरह से ड्राइविंग फोर्स वहाँ पे कैरी ऑन होता है, एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ एटम इज ऑब्टेन द नियरेस्ट एलिमेंट stage, yes, okay, and it converts into noble gas। जैसे कि देखिए बेटा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल दूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, दिस इज अ सोडियम। देखिए यहाँ पे मैंने सोडियम को रिप्रेजेंट किया है। चलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, यहाँ पे 11। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना मिल रहा है, जैसे कि 2 है ना, 8, ठीक है। इसके बाद 1 है ना, तो ये सोडियम का क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी सोडियम में क्या करता है बेटा, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पे लूज करेगा, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करता है तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, है ना। जैसे कि ये जो है यहाँ पे यानी कौन मिलते हैं बेटा, प्लस मिलते हैं, Na+, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मेटल लूज करता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो ये क्या करता है बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज कर वो क्या करता है बेटा, यस, ऑब्टेन द नियरेस्ट एलिमेंट नोबल गैस स्टेट। इसके नियरेस्ट यस एलिमेंट कौन है, जैसे कि अभी यहाँ पे नियॉन की स्टेबिलिटी वो धारण करता है, किसकी स्टेबिलिटी धारण कर लेता है बेटा, नियॉन की। जैसे देखिए बेटा नियॉन, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है बेटा, 10 है, ठीक है। तो 10 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना मिलता है, जैसे कि 2 और ये 8, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या बना, स्टेबल बना, स्टेबल है अभी, क्योंकि इसका ऑक्टेव पूरा है। कौन सा पूरा है यहाँ पे, ऑक्टेव, ऑटोमोस्ट सेल। तो ऑटोमोस्ट सेल यहाँ पे ऑलरेडी उसकी ऑक्टेव स्टेज पूरी होने के कारण ये क्या बन रहा है बेटा, यस, इट्स कन्वर्ट इनटू मींस सोडियम कन्वर्ट इनटू नियॉन एंड फॉर्म है यस नोबल गैस स्टेट, नोबल गैस स्टेट। जैसे कि देखिए बेटा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। अभी ये हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, इट कन्वर्ट्स इनटू हीलियम, हीलियम इज अ
यस, नोबल गैस। हीलियम कौन है यहाँ पे? नोबल गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे एक है। तो ये क्या करता है बेटा? अभी गेन करेगा, गेन। और जैसे ही गेन करता है, यहाँ पे देखिए बेटा, गेन करता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? माइनस चार्ज बनेगा। तो हीलियम फिर क्या होता है? तो यहाँ पे जैसे गेन करता है तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन यहाँ पे 2 बन रहा है, तो फुलफिल ड्यूअल स्टेट पूरी हो रही है इसकी। और जैसे ही उसकी ड्यूअल स्टेट पूरी होती है तो क्या बनता है बेटा? यस, ये अपने नियरेस्ट एलिमेंट्स नोबल गैस के स्टेट के रूप में, जैसे कि हीलियम के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू हीलियम, जैसे कि सोडियम कन्वर्ट्स इनटू नियॉन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसके साथ देखिए, ये जो पूरे मेटल्स होते हैं, है ना, मेटल्स लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। एंड दैट टाइम नॉन मेटल क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, है ना। जैसे कि देखिए बेटा, हम यहाँ पे ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स लर्न कर सकते हैं। अभी हम इस डाटा को रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें अगले एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे जगह चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, वी हैव रिमूव इट। चलिए बेटा, तो हमने यहाँ पे ये स्पेस को क्लियर कर लिया है। एक्चुअली देखिए बेटा, जैसे ऑटोमोस्ट सेल यहाँ पे कैसी होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि ड्यूअल के रूप में हो या ऑक्टेव के रूप में हो। ठीक है, तब वो जो ड्यूअल या ऑक्टेव के रूप में पूरी होती है तो वो नोबल गैस में कन्वर्ट होती है। यस, दैट इज अ बीइंग कंप्लीट। यस, ओके। स्टेट और स्टेबिलिटी, दैट्स टाइम दे डू नॉट पार्टिसिपेट एनी यस केमिकल रिएक्शन। वो कोई भी केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं होती, क्योंकि उनकी फुलफिल स्टेट ऑटोमोस्ट सेल यहाँ पे पूरी तरह से क्या होती है बेटा? स्टेबिलिटी होती है। और जैसे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज अ इनर्ट गैस, केमिकली इनर्ट। उसे क्या बोला जाता है बेटा? केमिकली इनर्शियल। तो देखिए बेटा, तो अपना पॉइंट यहाँ पे क्या है? मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल। जैसे देखिए बेटा, मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, तो यहाँ पे मैंने एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है, जैसे कि मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे नॉन मेटल हो सकता है। जब ये दोनों क्या करते हैं बेटा? कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पे हमें आयोनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। जैसे कि देखिए बेटा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखिए, एक्सप्लेनेशन के लिए एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लूंगा। जैसे कि मेटल है, तो हमें जो ज्ञात मेटल है ना, तो हम यहाँ पे लेंगे जैसे कि सोडियम। ठीक है, सोडियम लेते हैं। सोडियम के बाद फिर हम क्या लेंगे बेटा? यहाँ पे एक दूसरा नॉन मेटल यहाँ पे लेंगे। जैसे यहाँ पे नॉन मेटल कौन है? यहाँ पे Cl। हम कौन सा नॉन मेटल ले रहे हैं बेटा? यहाँ पे Cl। देखिए, सोडियम ए मेटल है, क्लोरीन यहाँ पे नॉन मेटल है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 2 8, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 ऐसा बनता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे? 17। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये 2 8 और ये कितने बेटा यहाँ पे? ये 7। चलिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो देखिए, इसके आउटरमोस्ट सेल में यहाँ पे कितने बेटा? 1 है। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे उसको जरूरी है, बट इट कांट पॉसिबल देयर। ठीक है बेटा, सो इट्स लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जैसे वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है तो वहां पे वो फुलफिल होता है, जैसे कि न्यून में कन्वर्ट होगा, जैसे कि 2 और 8 बनेंगे, जैसे कि वो न्यून में कन्वर्ट होगा। दैट इज अ फुलफिल स्टेट ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है बेटा, अभी क्लोरीन है। तो क्लोरीन देखिए बेटा, तो क्लोरीन में ये क्या होता है बेटा? इनके आउटरमोस्ट सेल में हमें 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। अब इसको फुलफिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरी है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन धारण करना है इसके लिए पॉसिबल है, तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा? +1 इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्लस करेगा, प्लस करेगा का मतलब गेन करेगा, यस ओके। माइनस इलेक्ट्रॉन यानी कि डोनेट करेगा। और जैसे देखिए बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, दैट इज अ, ये यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स मिल रहा है, यस, दैट इज लूजिंग एंड गेनिंग द इलेक्ट्रॉन हियर। तो इस ड्राइविंग फोर्स के कारण यहाँ पे देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं यहाँ पे, यस, इनकी आदान प्रदान होती है, लिए या दिए जाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे तो क्या बनेगा, जैसे सोडियम, जैसे इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है बेटा, लूज करता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो यहाँ पे यानी प्लस, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जैसे यहाँ पे हम क्लोरीन को लेकर देखते हैं, तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और जैसे गेन करता है तो यहाँ पे माइनस, गेन करता है तो माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट आयंस फॉर्म होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा, और इस अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे हमें कंपाउंड्स फॉर्म होता है, आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयंस मिल रहे हैं ना, जैसे कि सोडियम के यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, and they have opposite charges and they have a yes attraction, and due to that attraction they binds to with each other and form a yes, यहाँ पे हमें कंपाउंड्स मिलता है, दैट इज अ आयोनिक कंपाउंड्स। ये वाला कंपाउंड कौन मिल रहा है बेटा, आयोनिक। जैसे देखिए बेटा, इसको स्ट्रक्चर के रूप में भी हम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ये जो स्ट्रक्चर हमने 9th क्लास में लर्न किया था, ठीक है। अभी यही एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम को लेकर भी लर्न कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम में देखिए बेटा, अभी यहाँ पे यस, दिस इज अ मैग्नीशियम, ठीक है, एंड ऑक्सीजन। अभी देखिए, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कौन है, तो मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर यहाँ पे 12 है। तो देखिए बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 2, 8, ठीक है, और यहाँ पे 2 मिलता है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है। नेसेसरी कितनी है यहाँ पे 6 की, बट ये पॉसिबल नहीं होता है, तो इट लूजेस, ये लूज करता है, लूजेस है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इट बियर 2 पॉजिटिव चार्जेस, है ना, Mg++, ठीक है। अभी देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना होता है, ऑक्सीजन 8 है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये 2, यस, 2 के बाद यहाँ पे कितना मिलेगा, 6। इसके आउटरमोस्ट शेल फुलफिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नेसेसरी है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करना इसके लिए पॉसिबल है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा बेटा, गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। और जैसे गेन यानी कि प्लस करेगा, जैसे गेन करता है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनेंगे, है ना, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगी, क्योंकि वो लूज कर रहा है, ठीक है। देखिए बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो दोनों क्या करते हैं बेटा, एलिमेंट्स ऑफ एटम, यस, अपनी फुलफिल स्टेट ऑक्यूपाई करने के लिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, यस, ये क्या करते हैं बेटा, डोनेटिंग, यस, एंड गेनिंग, देवान घेवान बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस, अभी ये एक्सचेंज ऑफ आयंस के कारण जो मिलने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा, जैसे कि कोई भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल हियर, ठीक है। तो देखिए बेटा, वी हैव गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। Today's in this class, what we will learn here, for its I have summarized the block representing ray diagram for the summarize the today's class learn points. Yes, which points we have learned here, that is first is a reactivity of a metal is not the same, है ना, ये हमने पहले पढ़ा था। क्योंकि देखिए बेटा, we have carried the different type of chemical reactions, we have used the different reagents, just okay, and
we have learned there, yes, but a different type of chemical reaction, that is first, that is a metal react with oxygen, metal react with water, metal react with acid, metal react with non metal, metal react with other metal salt, just okay. And for learns there, yes, metal does not show the same reactivity means it does not show equal reaction. So we have learned there. Again we have learned here how determine the reactivity, that is a relative reactivity of metal. relative चलिए बेटा, तो we have learned the metal react with reagent. Actually, when reagents we have used, actually by using the reagent we can't get the judgment or the idea about to determine the relative reactivity of the metal. Yes, we can't get clear there, but we have learned one type of chemical reaction, that is a metal react with other metal salt. That time we have learned the one chemical reaction, that is a displacement reaction, and through that displacement reaction we have determine, yes, it's become very easy to determine the relative reactivity of metal. We have learned there, just okay. देखिए बेटा, ये यहाँ पे लर्न किया था, थोड़ा सा याद कीजिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए हम यहाँ पे रिएक्टिविटी रेट ऑफ एलिमेंट। एक्चुअली reactivity rate of element, it is a totally, yes, determined by using the, yes, using the, that is a displacement reaction. Yes, we have, yes, we have not used here the, yes, any kind of the reagent. यहाँ पे reagent को लेकर हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेकर ही हम इसको एलिमेंट को जैसे अरेंज करेंगे। जैसे कि देखिए बेटा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए हम इसको लर्न करते हैं, और इसी अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है बेटा, दैट इज अ रिएक्टिविटी रेट सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। चलिए इसे याद रखना है, इसे थोड़ा सा 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है बेटा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट अगेन वी हैव लर्न द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, दैट इज अ मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल। चलिए तो यहाँ पे हमें आयोनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। क्या मिल रहे बेटा यहाँ पे, आयोनिक कंपाउंड। जैसे कि देखिए बेटा, जैसे हमने पोटेशियम क्लोराइड, जैसे पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे हमें ज्ञात होनी चाहिए। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ज्ञात होते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होगा तो हमें यहाँ पे उसकी वैलेंसी है ना रिमेंबर होगी। तो वैलेंसी को लेकर जैसे हम यहाँ पे उसकी डोनेटिंग एंड गेनिंग कैपेसिटी हम लर्न कर सकते हैं, और उसी को लेकर यहाँ पे आयंस फॉर्म होते हैं। जैसे मेटल डोनेट करते हैं, जैसे नॉन मेटल गेन करते हैं, और जैसे आयन फॉर्म होते हुए अपोजिट चार्ज के कारण यहाँ पे कंपाउंड्स में क्या होती है, बाइंडिंग बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ड्राइविंग फोर्स मिल रहा है, दैट इज अ लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसी को लेते हुए यहाँ पे हमें क्या मिलता है बेटा, एक मेटल की रिएक्शन की टाइप्स यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलती है, जो कि मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल एंड फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड्स। देखिए याद करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वन, ठीक है। तो लर्न करो, यस। जैसे कि ये वीडियो को थोड़ा सा जब तक समझ में नहीं आता तब तक उसको हमें देखते रहना है, फॉलो करते रहना है। कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो जरूर पूछना है, ठीक है। यस, वी हैव स्टॉप हियर। Thank you.